शुरू करते हैं महाराज। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप शुरू करें। प्रणाम प्रणाम मंत्र हो गया क्या? जी 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 प्रणाम। प्रकृति परमा अभयं वरदा गणरूपधरं जडतापहरं शरणागत सेवकतोषकरी प्रणमामि परा जननी जगदा गुणहीन सुता न पराधयिता कृपयाद्य समुद्धर मोहमदा तरणी भवसागर पार करी प्रणमामि विषयांते सुमां परिवीत्य सदा चरणाम्बुज अमृत शांति सुधा शिवलिंगं मनो भवरोगहरं प्रणमामि परा जननी जगता। हेलो, बंद करो, सुनो, प्रोग्राम एक चेंज हो छे। संजय, तुमने बताया नहीं इनको? संजय जी महाराज। अभी तुमने बताया नहीं कि अभी मैंने प्रोग्राम को चेंज किया है। अच्छा मैं हूँ अभी। अच्छा, तो प्रश्नोत्तर ही करेंगे क्या? प्रश्नोत्तर करेंगे शुरू में। अच्छा, और उसके पहले लता कुंडू जो है वो उसका प्रोग्राम था, वो करेगी कि नहीं करेगी पता लगाओ। हाँ महाराज। हाँ तो बोलो, पहले तुम्हारा प्रोग्राम शुरू करो। महाराज बीच में कैसे बंद करेंगे? माँ का हो रहा है महाराज। नहीं हो गया वो तो तीन श्लोक तो हो गए ना। ओह ओके ओके ठीक है। Yoga in day-to-day life. Yoga is an integral part in the lives of many people. It is practiced for the improvement of physical health, relief of mental tension, and cure of lifestyle diseases. However, the deeper and important dimensions of yoga are often overlooked. The word yoga has originated from the Sanskrit word yuj, which means to unite. It is defined as the state of union of the soul with God. The word also implies to the various methods and means by which this state of union can be achieved. Swami Vivekananda has classified these means into 4 yogas, namely Karma Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga, and Raj Yoga. The ancient Hindu scripture Bhagavad Gita is the most outstanding expression of yoga that describes almost every means through which the union with God can be attained. The article also discusses yoga in the context of Patanjali Yoga Sutra, which has mentioned 8 steps in the practice of yoga, which are yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi. In addition, the Patanjali Yoga Sutra has mentioned 3 values which together called Kriya Yoga can lead to healthy living.
The first of it is tapa or austerity that tones up the physical being and increases stamina and willpower. The second one is swadhyay that purifies the intellect and protects one from unhealthy thoughts and is done by reading noble and spiritual literature. The third value is Ishwar Pranidhan, meaning devotion to God, and this protects us from emotional unrest. Coming to concentration of the mind, the author has discussed two types of concentration. One is passive concentration, which is easier and is done by concentration through external means like his organ of senses or through his organs of work. The other type of concentration is active concentration, where the mind is fixed on any one idea, name, or form without the help of senses. Although difficult, but active concentration has twofold advantages. The first advantage is that it helps the mind to focus on one idea, and the second advantage is that it keeps away unwanted thoughts and ideas from the mind. Swami Vivekananda has termed this second advantage as detachment. Patanjali Yoga Sutra has mentioned two means to achieve concentration of mind. One is by doing abhyas or practice, which needs to be uninterrupted, consistent, and done with enthusiasm and commitment. The other means for concentration is through vairagya or dispassion. These two means are suggested to be done together, as practice without detachment may lead to a confused state of mind or may lead to complete failure of the attempt. Our ignorance of considering the non-eternal as eternal is the main obstruction in attaining dispassion, and discrimination is the only way to achieve dispassion. We also need to be aware of the 5 pain-bearing obstructions called kleshas in our daily lives. These 5 kleshas are ignorance, egotism, attachment, aversion, and clinging to life. Our day-to-day mental activities should be molded in a way that, towards reducing these kleshas. Repeating the name of God has been advised by Patanjali for controlling the mind. Meditating on a noble personage and meditating upon the mind of a noble personage are also means through which. अच्छा ठीक है, अभी आ गया. The author concludes the article by reminding the readers that Patanjali Yoga Sutra is a treasure house of values, and a person following even a few of these values can live a happy and blessed life. Okay, very good. Well done, well done. So shall we take up now questions? ठीक है? जी महाराज. अच्छा, ये श्रीमयी मुखर्जी है? जी जी. श्रीमयी, तुम्हारे क्वेश्चन करो. नमस्ते महाराज. हाँ सुनो. हाँ महाराज, वो पहला प्रश्न तितिक्षा था जिसके लिए आपने तपस वाला आर्टिकल सजेस्ट किया था, तो वो सवाल नहीं करना है शायद अभी. हाँ ठीक है, रहने दो. मैं यही बता देता हूँ कि उन्होंने पूछा था कि तपस्या को, तितिक्षा को कैसे जीवन में लाना, तो मैंने कहा कि आर्टिकल पढ़ लो तपस्या का, तो सारी चीज समझ में आ. सेकंड क्वेश्चन. हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में बोलूंगी. लाइक द आर्टिकल से most people understand yoga to be only yogasanas plus pranayama. However, I feel that at least yama niyama must also be included in school and college curriculum for an overall development of personality and retaining moral values. What are your thoughts, Maharajji? No, this is a social, political question. I see. We cannot discuss this here. And so far as I know, to some extent, people, they are trying to teach this. I know as a student, I was taught, and I know certain things which I spoke untruth, I was punished. I did some nonsense, hurt someone, I was punished.
So this is the way they gradually, the children, they learn. But more important is they are learning everything nonsense through the TVs. Children are sitting in front of the TV for hours together. और वहां पे तो और कुछ नहीं है, वहां पे तो भोग ही है और कुछ नहीं है, नॉनसेंस वो दिखता है। उसको क्या करोगे तुम? तो यदि कुछ करना है तो यू विल हैव टू डू पॉलिटिकल एक्शन, सोशल एक्शन, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। क्या करोगे? इट इज नॉट सो इजी, एंड दैट इज व्हाट आई से। तो यहाँ पे we cannot discuss these things in this forum. हम अपने जीवन में डाल सकते हैं, that's all. Moral values, अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि, can we put it in our own life? You know, मांस मछली बढ़िया खाएंगे और उसके बाद में हम योगासन करेंगे और ध्यान करेंगे, ये सब होगा नहीं। Moral values are very, very important. Otherwise, it is not possible. It may be possible for Yatishwara, for Swami Brahmanand, Shri Ramakrishna and Swami Vivekananda. They were Avatari Purushas. But even a person like Yatishwaranand had given up meat and fish later on. So this is a very vast question, and let us leave it as such. Yes, Maharaj. Okay. Yes, Maharaj. Thank you. अच्छा, Itu Ghosh. Itu is there? Itu? जी महाराज वो है, अभी वो अपना अनम्यूट कर रहे होंगे। अच्छा, ईतू घोष जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न है, तापस और ऑस्टेरिटी टोन्स अप आवर फिजिकल बीइंग, स्वाध्याय purifies the intellect, and ईश्वर प्रणिधान regulates our emotional life. Please explain. अच्छा सुनो, ऐसा है, पातंजल योग सूत्र में जब बिल्कुल फर्स्ट सूत्र इन द सेकंड चैप्टर इज तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। बिना तपस्या के, बिना स्वाध्याय के, बिना ईश्वर प्रणिधान के किसी भी प्रकार का योग संभव नहीं है। तपस्या का अर्थ है, याद रखो, हम लोगों का 90% जीवन भोग का जीवन है, अनकंट्रोल्ड जीवन है। ये स्वीकार करते हो कि नहीं? जी। जब मर्जी में आए खा लिया, जो मर्जी में आए खा लिया, जिस दिन आया ये बना लिया, ये मिठाई बना ली, ये बनाया, और सब खा पी के मजा करते हैं और उस ऊपर से बोलते हैं कि योग करेंगे। Physically, we are uncontrolled. Our body is uncontrolled. Our sleep habits are uncontrolled. Our eating habits are uncontrolled. Our living habits are uncontrolled. इसलिए तपस्या का अर्थ है कंट्रोल्ड लाइफ लीड करना फिजिकली। बीच बीच में एकादशी करिए, बीच बीच में उपवास कीजिए, बीच बीच में थोड़ा सा आसन लगाइए, थोड़ा सा और भी कई प्रकार की तपस्याएं, बहुत सारा मैंने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो मेरे अलग अलग इंडिविजुअल आर्टिकल्स हैं तुमको मिलेंगे, सब के सब। उन इंडिविजुअल आर्टिकल्स को देख लो कि तपस्या कितने प्रकार की होती है। उनको किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। ये फालतू बकवास है। रेस्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉनसेंस, इट इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ओनली एट दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इसका कोई यूटिलिटी नहीं होने वाली है। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं होने वाला है। और स्वाध्याय तो सारा दिन आप उल्टा पुल्टा बात सुनते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, न्यूज़पेपर देखते रहते हो, सारा दिमाग जो है वह कचरे से भरा हुआ है। उसको प्यूरिफाई करने पड़ेगा। माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। जितना आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और जो अस्वाध्याय है उसको पूरी तरह दूर करना पड़ेगा। और ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड। संसार में बहुत सारी चीजें होती रहे, कोई अपनी इच्छा से नहीं होती। और थोड़ा सा भी हुआ तो अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया,
ओ एटा तो हुआ ना उचित उचित होलो ना ये संसार है कि हो गेलो एटा तो हुआ उचित नहीं ये तुम क्यों कर रहे हो ये सब all this what are these emotional unnecessary useless emotional reactions the world is going on according to भगवान की इच्छा से वो दुनिया चल रही है उसको आप बराबर चलते रहिए चलने दीजिए भगवान की इच्छा से अन्यथा आपके इमोशनल अटैचमेंट्स इमोशनल रिएक्शंस विल बी इरेगुलर और कोई योगी नहीं हो सकते कुछ भी नहीं कर सकते आप ये तप स्वाध्याय प्रणिधान एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मेरे अलग अलग आर्टिकल हैं तीनों के ऊपर तपस्या स्वाध्याय और शरणागति डिटेल में मैंने उसको वर्ण कर लिया है बिना उसके कुछ नहीं होने वाला हो गया जी सेकंड second है undisturbed calmness of mind is attained by cultivating friendliness towards the happy, compassion for the unhappy, delight in virtuous and indifference towards the wicked. But how to recognize the real happy, unhappy and virtuous people in the society? हाँ और हाउ जितना रिकॉग्नाइज करने जाओगे तो आपकी जो आपका उद्देश्य क्या है वही नष्ट हो जाएगा यू हैव नॉट इवन अंडरस्टूड माय क्वेश्चन मैंने कहीं लिखा हुआ है कि आई हाउ टू रिकॉग्नाइज द पर्सन व्हिच इज वर्चुअस एंड नॉन वर्चुअस एंड हैप्पीनेस और हैप्पी और अनहैप्पी ये कहीं भी लिखा हुआ है पतंजलि ने कहीं नहीं बताया कि कौन हैप्पी है कौन अनहैप्पी है कोई दुखी है अनदुखी है कहीं भी पतंजलि नहीं बता रहे हैं ये हम लोग हैं जो सारा जीवन पता लगा रहे हैं कि ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी है और इसने ये बड़ा गंदा काम किया है ये बदमाश है ये दिखता ज्यादा अच्छा दिखता है लेकिन ये बदमाश आदमी है हम सारा जीवन यही तो करते रहे हैं अरे सामने आपको अच्छा आदमी आया उसने कहा नमस्ते स्वामी जी माता जी कैसी हैं चलो अच्छा है हमसे आप नमस्ते से प्रेम से बात कर लीजिए कोई आया है दिखा कि आपको गई है तो गुस्से वाला आदमी है तो आप उससे दूरी जाइए उपेक्षा कीजिए कोई दिखा है गरीब है बाबा मेरे को कुछ दे दीजिए आप दे दीजिए खत्म हुई बात या उसके ऊपर देना भी नहीं है देना इज नॉट इम्पोर्टेंट भावना क्या कर रहे हो आप उसके ऊपर प्रतिपक्ष भावना अगर देने लग जाओगे तो योग से दूर हो जाओगे हमारे मन जो है हमारा मन इनके विपरीत रिएक्शन करता रहता है इसलिए सारी समस्या होती है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो सुखी व्यक्ति हैं तो उनके प्रति मन में प्रसन्नता का भाव रखना है बस सुखी व्यक्ति हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे दिखावे के लिए सुखी हो गया है इसके अंदर तो बहुत दुख है अरे ऐसा है ये नहीं है उसके प्रति मुदिता का भाव होगा जो कुछ व्यक्ति लग रहा है कि ये सज्जन है ये दानी है अच्छा है तो भी प्रसिद्ध अगर कोई दुखी हो तो भाई अरे भाई भगवान करे ये अच्छा हो जाए अब संसार में तो इतने दुखी लोग हैं सबको दुख दूर करने जा सकोगे क्या ये स्वामी विवेकानंद के लिए महापुरुषों के लिए संभव है जो लोग ये प्रतिष्ठित रहते हैं हृदय उनका इतना विशाल रहता है तो ये चार भावनाएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज प्रेजेंट नो दैट इज नॉट द पर्पस I have not mentioned this and nowhere you will find even in this commentary of Patanjali Yoga Sutras. Next question. Next question. When there is no evil or impure thought, but the mind is not stable, not even jumping, but moving, how to control the mind in meditation, while in meditation, or to attenuate? The control of mind does not merely depend upon evil thoughts or other things. It is pure, simple restlessness of mind. There is no other woe. Yeah. So some Patanjali says, before that you have to purify. तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये इत्यादि उसके बाद में
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। उसके बाद में क्या कट किया है? प्रत्याहार के बाद में क्या है बोलो? आसन, फिर से बोलो, क्या है? धारण, यम, नियम, ध्यान, आसन, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। प्राणायाम, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, और के बाद धारणा, धारणा। धारणा, अच्छा, फिर ध्यान, समाधि। अरे अब चुप रहो ना आप लोग। धारणा का अर्थ क्या है? बोलो, कोई है जानता है धारणा का अर्थ क्या है? एक देश काल वस्तु पे कंसंट्रेशन करना मन को। देश बंध चित्तस्य धारणा। धारणा, देश का अर्थ है एक स्थान पर, हृदय, हृदय कमल, भ्रूमध्य, सिर के ऊपर एक स्थान पर मन को एकाग्र करना। हृदय में, और स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने अलग से लिखा है धारणा। धारणा में लिखते हैं कि अपने हृदय में एक कमल की चिंतन करो और उस कमल के ऊपर मन को लगाओ और इधर उधर मन को मत जाने दो आधे पौन घंटे तक। हृदय में एक कमल का चिंतन करो और उसमें मन लगाओ। और इतना नहीं हो सके तो उसके ऊपर हृदय पे अपने इष्ट देवता का ध्यान को लगा दो, बस उसमें मन को लगाते रहो। इतु जी करोगे? जी सुन रहे हैं? हैं? जी जी करोगे? जी करेंगे, कोशिश तो कर नहीं, रहे प्रश्न हैं। ये है कि तुम्हारे हर एक चीज के बाद जब हंस देती हो ना तो लगता है कि इसको मजाक हो गई है ये। जी नहीं, हाँ, जरा सा कुछ भी बोला कि हंसती है तो हो गई, मजाक हो गई कि मेरे ये तो हाँ हंस दिए हैं। अरे ये सिंपल चीज है। सारा जीवन इधर उधर चंचलता में बीत गया, अच्छा जीवन बिता लिया, लेकिन मन चंचल रहा। क्यों? धारणा ही नहीं हो सकी। यतीश्वरानंद जी धारणा की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद धारणा की बात करते हैं, कभी जीवन में उतारा नहीं। अपने हृदय के ऊपर, हृदय कमल में कमल को सोचो, उस पर, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ध्यान करो। 6 महीने तक ये करो ना, ये हो गया, छोड़ो ध्यान, ईश्वर इष्ट का ध्यान, सब ठीक हो जाएगा। सुबीर मजूमदार, खत्म। तीनों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? ये तो हो गया ना क्वेश्चन? हाँ प्रणाम महाराज। हाँ भाई बोलो सुबीर। हाँ महाराज जी, जो आप अभी धारणा के बारे में बोल रहे थे, हम लोग जब वर्ड ध्यान का बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग सब धारणा की ही कोशिश करते हैं। ध्यान तो बहुत हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा महाराज जी, मेरे 3 सवाल है। उनमें जो पहला सवाल है तो ये डिस्कशन में वो क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने सवाल किया था, वी नो दैट निष्काम कर्म लीड्स टू मेंटल प्यूरिफिकेशन, बट हाउ डज वैराग्य प्यूरिफाई द माइंड। तो आपकी ये डिस्कशन में ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाउ डज वैराग्य प्यूरिफाई द माइंड। जब आप वैराग्य करेंगे तो नेचुरली प्यूरिफिकेशन आएगा। वैराग्य, I will answer is in a that of course these answers the Vairagya questions answers can be given in different way, but my question could be in a different way, and that was that कहीं इस पातंजल योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य को चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बताए गए हैं। वहां पर अभ्यास और वैराग्य में से किसी को भी चित्त की शुद्धि के लिए नहीं बताया गया है। गीता में भगवान चित्त शुद्धि के लिए भी इसलिए निष्काम कर्म बोलते हैं। वहां पे भी अभ्यास वैराग्य को निष्काम कर्म के बाद जब चित्त शुद्ध हो जाएगा उसको एकाग्र करने के लिए अभ्यास वैराग्य की बात करते हैं। वहां पर अभ्यास वैराग्य को चित्त शुद्धि के लिए उपयोग नहीं किया जाता। जी जी, ठीक है? ठीक है महाराज। अच्छा, दूसरा सवाल था वो महाराज समझ में नहीं आया।
समझने का कुछ नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब अभ्यास और अरे वैराग्य भाई, से? चित्त शुद्धि करने के लिए वैरागी की आवश्यकता नहीं है। पहले चित्त शुद्धि करो, उसके बाद वैराग्य आएगा। हाँ, उल्टा है। हाँ, जी महाराज। यानी मन तो इतना, देखो अभी बात हो गई है, धारणा का प्रयत्न किया करो अच्छी तरह। मन को सुनो, बात ऐसी है कि धारणा, मन को हृदय के अंदर ध्यान करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न कई लोग करते हैं, उसका मतलब ये है कि मन बाहर ही बाहर घूम रहा है, चंचल हो रहा है। यदि आधे घंटे पौन घंटे हृदय के अंदर लगा रखे मन, तो देखेंगे 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ हद तक महाराज जी शायद जवाब मिल गया है। आप ये चतुर भावना की बात जब हो रही थी, मेरा सवाल था हाउ टू प्रैक्टिस इंडिफरेंस टुवर्ड्स द विकेड। अब ये तो पर्सपेक्टिव की बात होगी, जैसे आपने महाराज जी अभी कहा। वो तो हो गया। तो हाँ, तो इसलिए सवाल को छोड़ देते हैं। हो गया। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन वाज right knowledge is obtained by direct perception, अनुमान and scriptural testimony. नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, right. प्रत्यक्ष भाई, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष हाँ. ज्ञान या राइट नॉलेज, मतलब ये सांसारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। अच्छा। पातंजल योग सूत्र में 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं ना, 5। हाँ, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। की वृत्तियां, कल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये प्रमाण जो है, ये सांसारिक सारी जनरल ज्ञान जो भी होता है उसके लिए है। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने सामने टेबल देख रहा हूँ, तो ये मेरा राइट नॉलेज है, ये प्रत्यक्ष हुआ। और किसी ने आकर कहा कि सामने ट्रेन जा रही है, ये मैंने अनुमान से, उसने जो कहा है उसके नहीं, वो यहाँ पे मोटर पो पो आवाज किया, तो इससे ये मुझे पता चला कि ये हुआ है अनुमान प्रमाण से। हाँ। और तीसरा हुआ किसी ने आगे कहा कि वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे पता चला है। तो ये जो है, ये राइट नॉलेज जो मेरे दिमाग में उठते हैं, इसके हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल प्रत्यक्ष नॉलेज। ये सांसारिक ज्ञान के बारे में है, सिर्फ सांसारिक ज्ञान के बारे में हो रही है। क्योंकि मेरा सवाल यही था कि सिंस वी आर नॉट अधिकारी फॉर डायरेक्ट परसेप्शन एंड अनुमान। No. Your question is related to direct to spiritual direct perception, which is not relevant. This question becomes invalid. जी हाँ, so that's all महाराज, तो हो गया। Okay. अच्छा, अब कौन बचा है? दिलीप भाई। जी महाराज, ये इसके कंटिन्यूएशन में जो आपने बताया, Patanjali has classified all our mental activity into 5 modifications. Yes. Yes. तो ये 5 modifications को महाराज थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। नहीं, मॉडिफिकेशन का मतलब यह है कि हमारे चित्त में जितनी विचार वृत्तियां होती हैं, वो इंग्लिश की बात मत लीजिए, हिंदी लोगे तो अच्छी तरह समझेगा। हिंदी का इंग्लिश का ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है। जी। हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, वो 5 प्रकार के विचार हैं। बस इतना आप समझ में आई तुमको बात? ठीक है जी। यानी मन में जो सत्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हुआ, कल्पना उत्पन्न हुई, स्मृति उत्पन्न हुई, और उसके बाद नींद आ गई। ये 5 प्रकार की चीजें मन में होती है, खत्म हुई बात। मॉडिफिकेशन की बात क्यों लाते? राइट जी महाराज। मेरा पहला सवाल है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट Patanjali's Yoga Sutra and Lord Krishna's 18 chapters of Bhagavad Gita based on 18 Yoga Sutra? एक ही तो है। क्या क्वेश्चन क्या था? जी मेरा पतंजलि योग सूत्र और लॉर्ड कृष्ण ने भी 18 चैप्टर के, वो 18 चैप्टर का योगा के चैप्टर बताया। ऑन एवरी चैप्टर गीता से योगा। तो ये दोनों में आपका प्रश्न क्या है महाराज? मेरा आपका प्रश्न क्या है
महाराज मेरा प्रश्न ये है कि आपका प्रश्न ये है कि ये 5 है 18 और ये 5 है और ये 18 है ये ना, यही है ना 18 प्रश्न chapter जो आपका? है योगा के नाम पे ही गीता में दिए गए हैं, तो ये चैप्टर्स को रिलेट हम पतंजलि योग सूत्र और इसमें कर सकते हैं क्या? महाराज जी का बैंडविड्थ लो था, अभी नोटिस आ रहा था। हाँ जी तो क्योंकि हाँ तो अरे एक और योग 18 में ये प्रश्नोत्तर योग जो अभी हम प्रश्न कर रहे हैं ना एक दूसरे से, हाँ तो श्रीमद 5 योग हैं और गीता में 18 योग हैं, यही तो? जी जी। जैसे पहला ही है विषाद योग, तो ये योग और पतंजलि के कौन से योग से हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे? कोरिलेट क्यों करने का? कोरिलेट क्यों करने का? नहीं तो ये दोनों विषाद से ईश्वर से जुड़ गए, वही योग है। पतंजलि से क्यों योग? हाँ, that is right, निमिता जी। I think basically योग तो जुड़ना है ना, you're right। हाँ, योग तो वही तो विषाद से ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, ये अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जुड़ रहे हैं, वही तो योग है। हर चैप्टर में किसके सहायता से जुड़े, जैसे ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और विज्ञान से जुड़ रहा है ईश्वर के साथ। योग मतलब जुड़ना, तो पतंजलि से नहीं मिला सकते, क्यों मिलाने का है? पतंजलि साइंटिफिक सब अलग तुमको बोलने को बोला, तुमको बोलने को किसने बोला? आपका बंद हो गया था मन। हाँ जी मन। दिलीप भाई। जी महाराज जी। हाँ तो आपका ये कहना है आपका ये पूछना है, आपका प्रश्न ये है कि गीता पतंजलि योग सूत्र में तो 5 योग हैं और गीता में 18 योग हैं, यही है ना? जी। तो उसमें आपका प्रश्न है कि ये कैसे होगा? इसको भी हाँ जी महाराज, है ना जी। मेरा ये कहना है कि एक और योग हम जोड़ देते हैं, क्वेश्चन आंसर योग, प्रश्नोत्तर योग जी। ये हम लोग जो कर रहे हैं ये योग नहीं होगा क्या? क्यों नहीं है क्या महाराज? मेरा इसका हाँ या ना में मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं नहीं समझ पाया। क्यों नहीं दे सकते? है योग है। निवेदिता अगर चुप रहेगी है, ये योग मौन योग हो गया, मौन योग। ओहो, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो बोलती चली जा रही है, बकबक कर रही है, अगर वो चुप रह जाएगी तो योग नहीं होगा क्या? होगा मौन योग। ये जितने प्रकार के उपायों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करेंगे सबके सब योग हैं। ये दिलीप भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है और उसका बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर है। जी जी दिलीप भाई हुआ ठीक से? जी महाराज, यानी महाराज एक मिनट में इसको एक सेंटेंस में मैं जो समझा वो बताना चाहता हूँ, जिससे हमको योग प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, वो योग है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। ये तो योग की परिभाषा यही है जी। योगा चित्तवृत्ति निरोध है, योग समाधि, योग जो है भगवान के साथ युग यानी जुड़ जाना। हाँ। मेरा आप किताब पढ़ डालिए योग के ऊपर, तो इसी के ऊपर से सब योग है।
जी जी जितने योग, कई किताबें देख लोगे आप, उसमें लोग हर एक अपना अपना योग सबका है। जी बराबर है जी। हाँ, अब मेरा मौन नेक्स्ट, योग है, एकांतवास योग है, ये सब के सब योग हैं। जी जी महाराज जी। अब ये है कि प्रश्न ये है कि हम समझते हैं कि यही जो गीता में लिखा है वो योग है, बाकी नहीं है। नहीं, हम अरे ये हम जब समझते हैं महाराज सुनिए, कि जो पतंजलि योग सूत्र में दिया है वो योग है। नहीं नहीं, अरे हम जो ये बोल रहे हैं ना कि आप जो अभी बैठे हुए बात कर रहे हो जी और कंटिन्यूअसली आप हाथ हिलाते जा रहे हो, तो ये जी योग नहीं होगा। अगर आप इस समय कंटिन्यू अपने ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो हो रहा है, जी इसमें भी आप अगर बिना हिले डुले बैठ सकते हो तो ये योग हो जाएगा। ये मैंने एक मेरे अपने जीवन से अनुभव किया है। अब मैं जब आरती में बैठता हूँ तो सारे समय मन को अपने हाथ पैर को नहीं हिलाता। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे शरीर का कोई अंग नहीं हिल रहा है। मतलब यह है कि मैं सारे समय योग का अभ्यास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हम अपने मन को कितने ही प्रकार से संयत कर सकते हैं। पहले मन को संयत करना है, मेरे शरीर को संयत करना है, उसके बाद में भगवान से चिंतन करने का आता है। हम लोग सीरियस जीवन है। किसी ने मेरे से अभी ये प्रश्न किया था ना, धारणा की बात तो वहां पे उठा ली थे, लेकिन सारा जीवन बिल्कुल इरेगुलर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते, किसी की गाली नहीं देते, किसी की चोरी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, हमारा मन क्यों एकाग्र नहीं होता। अरे आपका शरीर चंचल है, मन चंचल है, उसको आप किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं करते और कहते हो कि योग हो जाएगा। यानी 6 महीने हो गए हम लोगों की क्लासेस होते हुए, मेरे को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा आप लोगों में। बेसिक फंडामेंटल चीज है, शरीर को मन को संयत कीजिए। और बेचारे पतंजलि जानते थे कि शरीर में संयत ये लोग नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने कहा अरे भाई थोड़ा आसन करो, प्राणायाम करो, यम नियम करो, थोड़ा तो करो बाबा। और हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रवचन दे देते हैं, ब्रह्मेशानंद के नाम से योगा डे टू डे लाइफ की किताब भी पढ़ कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मेशानंद जो है वो खुद अपने जीवन में उसको उतारते नहीं। बिना उसके कुछ नहीं होता बाबा, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। God is running his universe in his own way. Where to peacefully surrender is essential to avoid emotional unrest. So my question is, the present epidemic of corona is also one of the reasons of the God's willingness, or it is punishment for our own. हाँ, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन। ईश्वर ही सबके हृदय में बैठकर जो मर्जी माँ चला रहे हैं, है ना। कहता है गीता में भगवान यही कर रहे हैं, तुम क्या करोगे अर्जुन, मैं सब कर रहा हूँ, मैंने सबको मार दिया है। जब यही भगवान कर रहे हैं ना, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमको ही बैठे रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कह के उसके बाद क्या करवाया, युद्ध करवाया ना। और भगवान पहले कहते हैं मैं तो मार चुका हूँ, तू भी कर। तो आपने मार लिया तो मुझे क्यों लगाते हो घोर संसार में, लगाते हैं ना। वो जैसे घोर पाप में मैं क्यों नियुक्त करते हो। भगवान साहब कहते हैं उसको, वो कहते हैं कि तू करना ही पड़ेगा। तो ये तो जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो बैठे रहना, कहा खाने के लिए कहा जाते हो, कोरोना की तो बात करते हो लेकिन खुद के खाने की बात नहीं करते हो। सब कुछ करना है हमको, लेकिन ये जान के करना है कि सब भगवान की इच्छा से। जी 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 ठीक है जी महाराज जी। कभी कंफ्यूज मत कीजिए इस चीज को, और गीता को बड़ा अच्छी तरह कीजिए, पढ़ के
वहां जी। भगवान सब सब ये कहते हैं और उसके बाद में अर्जुन को कहते हैं कि करना पड़ेगा तेरे। Yes. चलो जी महाराज, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Maharaj, for active concentration, we need good health, and for that, Patanjali's Yoga Sutra of asana and pranayam practice is necessary. How a beginner sadhak of meditation synchronizes the two? Should I give more time to my? क्यों उसमें देखना, दोनों एक ही चीज पे है। नहीं महाराज, अरे दोनों चीज एक ही तो है। हाँ, प्रश्न क्या है तुम्हारा? नहीं महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि प्रश्न क्या है? प्रश्न my question is कि should I devote more time towards asana and pranayam? Asan for my. अरे अरे इस 80 बरस की उम्र में कुछ नहीं कर सकोगे, छोड़ो। 80 बरस की उम्र की बात नहीं है, ये 25 बरस की उम्र में होना चाहिए। जी। इस उम्र में क्या एक्सरसाइज करोगे? हम तो करते थे ना बचपन में, जो है 25 बरस की 20 बरस की उम्र में आसन करते थे, और पद्मासन करते थे, शीर्षासन करते थे, और एक्सरसाइज भी डन बने 45 बरस से, उसके बाद छोड़ दिया था। अब करने की कोशिश मत करना, कर नहीं सकोगे। ये जवान लोगों के लिए है। Maharaj, I am spending 2 hours on exercises. That is my problem. कि I am wasting more time on exercise and less time on meditation. Or should I leave it and to go on meditation? अब ये आपको डिसाइड करना। आपका हेल्थ आपकी अच्छी है, तो अब उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 15 मिनट इधर 15 मिनट इधर कम कर लो, अधिक रखेगा। मेडिटेशन करना चालू करो, लेकिन मेडिटेशन में बैठ के मन इधर उधर घूमता रहे, भटकता रहे, इससे क्या फायदा होगा? मैंने यही सजेस्ट किया है कि पहले आप करो, 15 मिनट कम करो, और 15 मिनट हृदय में ध्यान करना, जिसे मैंने कहा ना अभी, धारणा करना, और भगवान के नाम को मनी मन उच्चारण करके उसको मनी मन सुना। ऐसा अभी आधे घंटा रोज करो, और महीने भर बाद देखो कि कुछ फायदा होता है क्या। जी। और 2 घंटा एक्सरसाइज इस उम्र में तो मुझे अधिक लगता है। यानी इससे तो यही होगा कि आप 100 साल जियोगे, उससे क्या फायदा। लेकिन ध्यान नहीं होगा तो उससे क्या, 100 साल क्या 150 साल भी रहे, लेकिन भगवान में ध्यान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। महाराज, इसी का कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इफ वी कैनॉट कंसंट्रेट ऑन माइंड फॉर मेडिटेशन, then it is better to leave Swami Yatishwaranand Ji Maharaj site. But one day one has to start concentration, then how it will be possible? नहीं, वो आपने मिसअंडरस्टैंड किया यतीश्वरानंद जी को। वो किसी कॉन्टेक्स्ट विशेष में कहा गया। हाँ, यस। मैं पढ़ूं क्या महाराज? हाँ बताओ जी, यदि पूरा दीक्षा गया तुमको। yes. When someone complained to Swami Yatishwaranand that he was not able to concentrate his mind, the Swami replied that it was good that he did not get good meditation because his mind was impure. Vairagya essentially consists in purification of mind and reducing one's attachments and our and patience. वही तो मैंने इसीलिए मैंने जानबूझ के उसको पढ़ने को कहा। अगर अपवित्र मन हो तो ऐसे अपवित्र मन को कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए, वह अपवित्रता और बढ़ जाएगी। कोई आके बोला कि महाराज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो यतीश्वरानंद जी ने कहा था कि बेटर तुम नहीं करो तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम्हारा मन क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंड इज देयर। तुम्हारा मन तो है कामना वासनाओं से भरा हुआ है, और तुम मन में कंसंट्रेट करोगे तो और माइंड तुम्हारा और भी भयानक हो जाए। जी, ये मैंने ये अपने आर्टिकल में ही है ना, हिंदी में है। तो पहले वैराग्य बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पवित्र करना पड़ेगा बाबा, उसके बिना मेडिटेशन करने से नुकसान हो सकता है। जी,
चलिए नेक्स्ट। Next, Maharaj. Maharaj, how can we coordinate jap and meditation for getting better results? क्या मतलब? जप करो और मेडिटेशन करो तो में फर्क पड़ता है। ध्यान जप पे ध्यान दे। अरे जप और मेडिटेशन में क्या फर्क है? हाँ महाराज, फर्क नहीं जप का अर्थ है, नहीं, मेरा जो कहना है कि एक के अंदर हम मंत्र का नाम लेते हैं जप करते वक्त, और यदि हम जप करते हुए मंत्र का नाम न लेते हुए सिर्फ आंख बंद करके यदि कोई ईश्वर का पिक्चर देखते हैं या श्वास पे कंसंट्रेट करते हैं तो ये मेडिटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा या जप वाला अच्छा रहेगा? अरे जप और मेडिटेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदीश्वरानंद जी ने मुझे एक्चुअली बताया, हम दोनों घूमने जा रहे थे तो मैंने कहा कि महाराज मेरे को ध्यान करना अच्छा लगता है, जप करना अच्छा नहीं लगता है। तो वो खड़े हो गए और सड़क के ऊपर मिट्टी थी, धूला था, उस धूले पर अपनी लकड़ी से उन्होंने खुट करके उन्होंने एक लाइन खींची और उसके बाद उस लाइन को जोड़ दिया। देखो पहले लाइन जो खुट उन्होंने कहा कि ये है मेडिटेशन, ये है जप, और उसके बाद उसको जोड़ दिया, लाइन को जोड़ दिया, ये हुआ मेडिटेशन। जप लीड्स टू मेडिटेशन। बिना जप में सिद्ध हुए तुम मेडिटेशन में सफल नहीं हो सकोगे। अपने आप को छल मत करना। हमारा मन जो है कभी मेडिटेशन नहीं करता, वो होता है हमेशा जप ही होता है। हम समझते हैं कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट तो मूर्ति होती है, दूसरे मिनट ऑफिस की मूर्ति आ जाती है, तीसरे मिनट और किसी की मूर्ति आ जाती है, फिर मेडिटेशन का एक अपना रूप आ जाता है। इस प्रकार चलता रहता है। अगर कंटिन्यूअस आप आधे घंटे भी जप कर लो ना तो याद रखो तुम सिद्ध हो जाओगे। छल मत करना। मेडिटेशन अरे कोई जान नहीं कर पाता मेडिटेशन। यतीश्वरानंद जी बार बार जप की बात करते थे, जबकि वे ध्यान सिद्ध थे, समाधिमान पुरुष थे ये, लेकिन सबको जप की बात करते थे, इतना महत्व देते थे कि जप की बस। उनकी किताब मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ तो है तुम्हारे पास में, उसमें जप के ऊपर ध्यान, जो जप के ऊपर आर्टिकल है उसको पढ़ डालना, और ब्रह्मानंद जी की किताब भी है उसके अंदर भी जप है, उसको पढ़ डालना। जप को इम्पोर्टेंस कम मत देना किसी भी प्रकार से। दिन रात जप करते रहो और बैठ के जप करो। तो मैं बार बार कहता हूँ जप करो और मंत्र को मन ही मन सुनो। मंत्र है ना वो तो जप मन ही मन सुनो, और अगर अकेले हो तो जोर जोर से करो और मन ही मन सुनो। और ध्यान करना है तो आंख खोल के इष्ट को देखो और आंख खोल के ही ध्यान करते रहो बाबा। साल भर तक आंख खोल के करो। ये सब मन की छलना है। आंख बंद करके करेंगे और 2 मिनट में मन किधर चला गया। अगर ऐसा होता अभी तक तो आप सिद्ध हो जाते, सब कुछ आ जाते। चलो और कोई? ये 1 मिनट और देख लेता हूँ। नहीं था बस महाराज, थैंक यू। प्रणाम। बस ठंडे हो गए। अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चंस? महाराज मेरा एक सवाल था, दैट वाज रिगार्डिंग द आर्टिकल इटसेल्फ। मैं पढ़ूंगा ना? हाँ पढ़ो। I said this article talks about yoga in a very broad and comprehensive way. But my question is, when people are able to get medical benefits, healthy and stress-free life by practicing asana, pranayama and meditation, why will anyone get into the trouble of following different values as described in the subsequent paragraphs? Conversely, if someone is seriously practicing these values, his mind will be so refined and elevated that physical well-being will be of no concern to him.
then what is the relevance of this article in terms of our daily living? 90% people, this article has absolutely no significance. Yes. For 90% people, it is of no value. It is an article which is the final article of my book, when Yoga in Day-to-Day Life. Usme already so much of values of yoga have been described. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, ityadi. I don't know whether you have seen that book or not. Yes, man. So, जो लोग जब ध्यान जो तप जो आसन प्राणायाम और ध्यान करते रहते हैं, बस वो 90% लोग संतुष्ट हैं, अपना संसार का काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कमा रहे हैं, उनका मन एकाग्र हो गया है और वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है। उनको योग से क्या लेना देना? योग का अर्थ ही यही होता है आजकल के जमाने में। तो प्रश्न नहीं उठता योग का वहां पे। तो ठीक है, वो लोग 90% 99% पीपल यही योग है उनका। और ध्यान जब करेंगे और आसन करेंगे, ये सारे दुनिया में यही तो फेल हो गया, यही तो हो गया है ना, यही तो फैल गया है ना। दिस इज व्हाट इज एवरीवन नोज अबाउट योगा। So absolutely, this article has absolutely no meaning. Yes, ma'am. And the second part is moral and ethical values. You live a peaceful life. That's all. This is what I say. Yoga and day-to-day life. My lead a peaceful life. That's all. But when you want to practice yoga sincerely, asana, pranayam, in that article, that was nothing. I mean, if you want to seriously, sincerely practice yoga, then all Ashtanga yogas must be practiced. Why will they? If you are serious, आपने दूसरे क्या कहा है? आप आसन में सिद्ध न होने पर घंटे 2 घंटे अच्छी तरह ध्यान में बैठ नहीं सकोगे, और ध्यान में नहीं बैठ सकोगे, आपको आनंद नहीं आएगा। यानी जप का, ध्यान का आनंद यदि जिसको आता है तो वो छोड़ने की इच्छा नहीं करता। 90% लोग ये नहीं जानते। हम भाई किसी को कष्ट नहीं देते हैं, चतुर भावना करते हैं, तप स्वाध्याय करके अपने जीवन को स्वस्थ रखते हैं, थोड़ा सा बस, तो ठीक है। और शुभ जीवन हम यम नियम पालन करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो अच्छे हैं, बढ़िया रहो। तो ये आर्टिकल जो है ये ऐसे लोगों के लिए है जो आराम से अच्छी तरह से सज्जन के रूप में रहना चाहते हैं। उनको हमने ये भी सजेस्ट कर लिया कि थोड़ा आसन प्राणायाम करोगे तो तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहे। और जैसे दिलीप भाई हैं, दिलीप भाई एक्सरसाइज करते रहे, आसन प्राणायाम इतने वर्षों से किया है, तो 80 बरस की उम्र में वो जवान है अभी भी। तो ये तो हम लोगों की जो हिंदू परंपरा में ये चीजें हैं, हेल्दी लिविंग, हेल्दी फिजिकल लिविंग, हेल्दी मेंटल लिविंग, ये तो अच्छा ही है, इसमें क्या नुकसान क्या है? यस मैम। अगर दोनों को आप कंबाइन कर सो तो वेल एंड गुड। ठीक है। हाँ मैम। अब कितना टाइम हुआ है? पूरा 1 घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा हो गया। जी महाराज। अच्छा सुनो, हमको किसी ने कहा था कि महाराज आप भी कुछ कहा करिए। हम इतना तो कह दिया, उसके बाद में और क्या कहना चाहते हो? हमने सोचा था कुछ कहेंगे। देखिए, हमेशा श्री रामकृष्ण की जो बात है उसको हमेशा याद रखने का। श्री रामकृष्ण का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन, जीवन का उद्देश्य है। मैं बकबक करूं या आप सुनो, दोनों का उद्देश्य जीवन ईश्वर दर्शन है। न तो मुझे भूलना चाहिए इस चीज को, न आप लोगों को इस चीज को भूलना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल लाइफ श्री रामकृष्ण का वचन ईश्वर दर्शन। दूसरी बात है व्याकुलता। यही तो है ना श्री रामकृष्ण के उपदेश का, यही सार है ना, व्याकुलता। भगवान के लिए व्याकुल होना पड़ेगा,
संसार में मन जो है जब तक लगा हुआ है तब तक ईश्वर दर्शन में मन, भगवान के लिए मन नहीं रोएगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं। दूसरी बात श्री राम कृष्ण कहते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। संसार के लोगों की सेवा करो, लेकिन मन में याद रखो कि शिव ज्ञान से करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा करेंगे और अगर भूल जाएंगे कि शिव ज्ञान से सेवा है तो हम भूल जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, हमें अपने स्वरूप को कहीं नहीं भूलना है। हमारा स्वरूप है परमात्मा। सारा जीवन हमें एक क्षण, प्रत्येक क्षण याद रखना है कि हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, हम परमात्मा है, हमारी आत्मा है। और इसी को कहा है शिव ज्ञान से जीव सेवा। और उसके बाद में थोड़ा सा स्वामी जी ने डाइल्यूट करके कर दिया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करो और जगत के हित के लिए प्रयत्न। लेकिन सर्वत्र याद रखे हमेशा ईश्वर दर्शन, ईश्वर दर्शन। अपना आत्मा का स्वरूप हम परमात्मा हैं, हम शरीर मन प्राण नहीं हैं। बाकी सब बकवास। ठीक है? सो संजय जी महाराज। 1 घंटा हो गया, कैन बी स्टॉप? जी महाराज। अगर किसी को कोई प्रश्न न हो तो हम बंद करें। जी महाराज। तो मुझे तो प्रसन्नता है कि मैं खींच गया। लोग इस बीच लोगों को थोड़ा सा बोर हो गए। वो जो कई लोग तैयार करके आए होंगे, भजन तैयार करके आए होंगे, क्या कुछ हुआ होगा उन लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैं We have seen you, that is more than enough to us. सुबीर तुम्हारे प्रश्न हो गए? तो हाँ महाराज हो गए। अच्छा ठीक है। और किसी का प्रश्न नहीं? सुबीर हो गया, कुंडू हो गया, फिर ईतू हो गई, निवेदिता का कोई एनी स्पेसिफिक प्रश्न? निवेदिता, यू हैव गॉट इट? नो। ठीक है, फिर बंद करते हैं। जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम बिना टोपी के और बड़ी दाढ़ी के मैं अधिक उच्च कोटि का महात्मा दिख रहा था क्या? हाँ। बीमारी भाग गई आपको, ये बिना टोपी बिना उसके। अब नेक्स्ट टोपी वाले को मैं ये करूं कि नेक्स्ट टाइम मैं 7 दिन तक दाढ़ी बढ़ाऊं और उसके बाद में हूँ प्रवचन करूं। क्या आप लोगों का क्या? नमस्ते अम्मा। डे टू डे लाइफ। प्रणाम महाराज। नमस्ते नमस्ते अमरीश जी, नमस्ते।